کر کے کہیں کسی کے ہاتھ میں پکڑائی ہے کہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ساری زندگی یہ بات کبھی نہیں مانی، کبھی نہیں اس کو قبول کیا کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مرتا ہے۔ شروع سے لے کر 1896 میں جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے نا، وہ انجام آتم میں، وہاں بھی ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے آپ کو پرانی تحریریں بھی ملیں گی تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ کبھی جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے، کبھی سچا جھوٹے کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے۔ اس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو پہلے مر گیا ہے وہ جھوٹا ہے، جو بعد میں مرے گا وہ سچا ہے۔ یہ اصول ہی باطل ہے۔ تو ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس طرح کی یہ تحریر کیوں پیش کرنی تھی؟ تو مرزا صاحب نے صاف غلط بیانی کی ہے کہ یہ کوئی دستخطی تحریر میرے پاس پہنچی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں ایسے مقابلے کے لیے تیار ہوں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ پس اسی پر میری دستخط ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے پیر مغاں کی ہے، یہ جو کچھ ہے یہ کارستانی یہ آپ کے پیر مغاں کی ہے، جس نے سب سے اول خدا پر افترا کیا، اس کے بعد اس کے رسولوں پر، پھر مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی، پھر مولانا غلام دستگیر قصوری پر بہتان باندھا کہ وہ میرے ساتھ مباہلہ کر کے مر گئے، جس کا ثبوت دینے پر حضرت کو 500 روپے کا انعام ملتا ہے اور مرزائیوں کو 200 کا اشتہار ہے۔ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ یہ بات جو آپ نے میرے ذمہ لگائی ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے ایک غلط بات مولانا اسماعیل علی گڑھی کے ذمہ لگائی کہ وہ آپ کے ساتھ مباہلہ کر کے فوت ہوئے، مولانا غلام دستگیر قصوری کے ذمہ لگائی کہ وہ آپ کے ساتھ مباہلہ کر کے فوت ہوئے، اس پر میں نے 500 روپیہ انعام آپ کو رکھا ہوا ہے اور 200 روپیہ اشتہار کا بھی، کہ آپ ہمت کریں اور بتائیں کہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے کہاں آپ کے ساتھ مباہلہ کیا ہے، مولانا اسماعیل علی گڑھی نے کہاں آپ کے ساتھ مباہلہ کیا ہے۔ سیم ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بات جو آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں یہ میری دستخطی تحریر دکھائیں، اب یہ نیا شگوفہ خاص میری ذات کے متعلق ہے، پس اگر تم اپنے باپ کے سپوت ہو اور پیر کے مخلص مرید ہو تو میری تحریر حرف بحرف کرشن جی سے شائع کراؤ، پھر ایک عام مجمع میں جو تمہاری خاطر قادیان کے قریب بٹالہ ہی میں کیا جائے گا اس تحریر کا معائنہ ہوگا، اس سے بعد جواب دوں گا، لیکن یاد رکھو کہ ایسی تحریر تم کو میری دستخطی نہ ملے گی، بلکہ یہ سب کرشمے اسی دجال اکبر کے ہیں جس کی شان میں بالکل صحیح ہے۔ جفا جو والا نظر نہیں آ رہا، وہ میں خالی سکرین آ رہی ہے، میں سامنے اخبار کھول لی ہے، میں جس وقت میں سکین پہ ہی دیں گا، میں رکھ کے پڑھن لگیا لوگوں نے پتہ لگے نا پھر وہ معاملہ پھر میں کہنا سکین دی ضرورت اسی حوالہ طلب کرے میں سکین لا دیں گا، منو گل کرن دو۔ پس تمہارا پہلا فرض ہے کہ تم اپنے بوڑھے باپ کی اور اپنی پیر مغاں کی عزت بچا لو، ورنہ دنیا جان جائے گی کہ قادیانی مشن میں بجز اس کے کچھ نہیں کہ جھوٹ کو سچ کر دکھانا کوئی ان سے سیکھ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور راجہ طاول منان صاحب آج 29 جون 2025 کو بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تحریر دستخطی یہاں پیش کریں، ابھی میں آپ کو وہ 300 روپیہ آپ کو واپس کر دوں گا جو لدھیانے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے منشی قاسم سے جیتا تھا۔ بالکل غلط بات ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کوئی دستخطی تحریر اس طرح کی تھی، کوئی تحریر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی اس طرح کی نہیں تھی۔ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی اس طرح کی کوئی تحریر دکھائیں آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اگلی بات سنیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا صاحب نے اعجاز احمدی میں یہ بات کہی ہے کہ دستخطی تحریر دیکھیے، اسی اعجاز احمدی کا 122 صفحہ ہے۔ سوال میرا نوٹ کر لیں، پہلا سوال میں نے یہ کیا ہے کہ راجہ صاحب وہ دستخطی تحریر کہاں ہے یا اس کا جواب الجواب کہاں ہے، وہ لا کے آپ نے پیش کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مباہلہ تھا 1896 میں، مباہلے کا وہ ان کو چیلنج کیا، پھر مباہلہ راجہ صاحب اس سارے اشتہار کو میں ابھی پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اس میں لفظ مباہلہ موجود ہی نہیں ہے اس سارے میں۔ اور اس کے بعد مرزا صاحب 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے، 15 اپریل 1907 کو یہ اشتہار چھپا، 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب فوت ہوئے۔ دکھائیں مرزا صاحب نے 1 سال 1 مہینہ 11 دن میں بھی کبھی اس اشتہار کو مباہلہ قرار دیا ہو کہ میں نے ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے راجہ صاحب اعجاز احمدی کی صفحہ نمبر 122 سے روحانی خزائن کی 19ویں جلد سے پڑھنے لگا ہوں۔ اگر ایک قذاب دنیا سے کوچ کر جائے اور باقی لوگوں کو ہدایت ہو جائے تو ایسے مقابلے والا نبی کا اجر پائے گا، لیکن
हम मौत के मुबाहले में अपनी तरफ से कोई चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत का मुआहदा ऐसे चैलेंज से हमें माने है। मिर्जा साहब तो मुबाहले का चैलेंज कर ही नहीं सकते, मिर्जा साहब तो अपनी तरफ से मुबाहले का इश्तिहार दे ही नहीं सकते। तो ये मुबाहले का इश्तिहार नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना मिर्जा साहब ने इसको इस इश्तिहार में लिखा कि ये मुबाहला है, ना इसके बाद 13 महीनों में कभी कहा कि ये मैंने मुबाहला छापा है जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ किया है। हकीकत ये है कि ये इश्तिहार जो मैं अभी पढ़ के सुनाने लगा हूं, ये छापने के बाद मिर्जा साहब 13 माह जिंदा रहे, 13 माह और 11 दिन जिंदा रहे, और आपके जमात के लोग इंतजार करते रहे कि अभी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी इस इश्तिहार के वजह से, इस दुआ के, इसको कहते हैं दुआ वाला इश्तिहार, इस दुआ वाले इश्तिहार की वजह से फौत होंगे, अभी हम कहेंगे कि मिर्जा साहब की दुआ कबूल हुई। 13 महीने 11 दिन इंतजार करते रहे, लेकिन उस इंतजार के बाद जब इजराइल लाहौर आ गया अहमदिया बिल्डिंग हाउस मिर्जा साहब की मौत का पैगाम लेकर, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो मुबाहले की तहरीर थी। ये भी बहुत बाद में कहा, उस वक्त भी नहीं कहा, बहुत बाद में कहने लगे कि ये तो मुबाहले की तहरीर थी। भाई मिर्जा साहब ने इसको मुबाहला नहीं कहा, सुने तहरीर क्या है। इसमें कहीं मुबाहले का लफज हो, मुझे रोक दीजिएगा कि ये देख लो लफज मुबाहला आ गया है, तुम झूठ बोलते हो, इसमें मुबाहला है। सुने जी अल्फाज, मिर्जा साहब कहते हैं मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कहते हैं कि अस्सलाम, हाँ खिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब, अस्सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। मुद्दत से आपके पर्चे अल हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप इस पर्चे में मरदूद, कज़ाब, दज्जाल, मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं और दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि यह शख्स मुफ्तरी और कज़ाब और दज्जाल है, और इस शख्स का दावा मसीह मऊद होने का सरासर इफ्तरा है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा, मगर चूंकि मैं देखता हूं कि मैं हक के फैलाने के लिए मामूर हूं और आप बहुत से इफ्तरा मेरे पर करके दुनिया को मेरी तरफ आने से रोकते हैं, और मुझे इन गालियों और इन तोहमतों और इन लफाज से याद करते हैं जिनसे बढ़कर कोई लफ्ज़ सख्त नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं जैसा कि अक्सर औकात आप अपने पर्चा में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा। इसे जुमला खबरिया कहते हैं। राजा साहब, ये खबर है, ये मिर्जा साहब का इल्म है कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा। ये खबरिया जुमला है। बताना है कि ये खबर गलत निकली कि सही निकली। 2 सवाल मैंने पहले आपके लिए छोड़ दिए हैं कि क्या मिर्जा साहब मुबाहले का चैलेंज अपनी तरफ से कर सकते थे, एक। दूसरा ये कि ये जो दस्तखती तहरीर है ये कहाँ है, इसका कुछ सबूत है, या आप मानते हैं कि मिर्जा साहब ने गलत बयानी की है। आगे सुने, कहते हैं कि अगर मैं झूठा और कज़ाब हूं तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और आखिर वो जिल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की जिंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है। ये कहाँ से इल्म लिया मिर्जा साहब ने कि जो झूठा होता है उसको लंबी उम्र नहीं दी जाती है? ये कहाँ से मिर्जा साहब ने ये इल्म लिया है कि झूठा हमेशा सच्चे की जिंदगी में मरता है? भाई, कभी झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, कभी सच्चा झूठे की जिंदगी में फौत हो जाता है। कुरान शाहिद है कि अल्लाह ताला तो ढील देता है गुमराह लोगों को। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात हैं, सबको याद होती इतना तो। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। जिन लोगों ने अपना कुफर लिया, हरगिज ये ना समझें कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं कि वो गुनाह में आगे बढ़ जाएं और आखिरकार उनके लिए ऐसा अजाब होगा जो उन्हें जलील करके रख देगा। अल्लाह ताला तो ढील देने की बातें करता है। किसने कहा है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है? अजीब बात है। बहरहाल इसका जवाब दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि पता नहीं ये इल्मुल कलाम आपने मिर्जा साहब कहाँ से लिया है कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि झूठे की लंबी उम्र नहीं होती। कहते हैं खुदा के, अगर मैं खुदा के मकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ और मसीह मऊद हूं तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूं कि आप सुन्नत अल्लाह के मुवाफिक मुकज़्ज़बीन की सजा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सजा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से है, जैसे ताउन, हैजा वगैरह मोहलक बीमारियां आप पर मेरी जिंदगी में ही वारद ना हुई तो मैं खुदा की तरफ से नहीं, ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं।
बल्कि महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से ये फैसला चाहा है। यहां लिख सकते थे ना मिर्जा साहब कि ये दुआए मुबाहला है, सनाउल अमृतसरी साहब ये दुआए मुबाहला। मिर्जा साहब कहते हैं ये महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मेरे मालिक बसीर कदीर, जो अलीम व खबीर है, जो मेरे दिल के हालात से वाकिफ है, अगर ये दावा मसीह मौद होने का महज मेरे नफ्स का इफ्तरा है और मैं तेरी नजर में मुफसिद और कज़्ज़ाब हूं और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है, तो ऐ मेरे मालिक मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मौलवी सनाउल्लाह साहब की जिंदगी में मुझे हलाक कर और मेरी मौत से उनको और उनकी जमात को खुश कर दे, आमीन। ऐसा ही हुआ। 13 महीने के बाद मिर्जा साहब फोत हुए। आगे कहते हैं मिर्जा साहब, मगर है मेरे कामिल और सादिक खुदा, अगर मौलवी सनाउल्लाह इन तोहमतों में जो मुझ पर लगाता है हक पर नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी में ही उनको नाबूद कर, मगर ना इंसानी हाथों से बल्कि ताउन, हैजा वगैरह मोहलक इमराज से, बजुज इस सूरत के कि वो खुले तौर पर मेरे रूबरू मेरी जमात के सामने इन तमाम गालियों और बदज़बानियों से तौबा करें जिनको वह फर्ज मनसबी समझकर हमेशा मुझे दुख देता है, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं इनके हाथों से बहुत सताया गया और सब्र करता रहा, मगर अब मैं देखता हूं कि इनकी बदजुबानी हद से गुजर गई। वो मुझे उन चोरों और डाकों से भी बदतर जानते हैं जिनका वजूद दुनिया के लिए सख्त नुकसान रसा होता है, और उन्होंने इन तोहमत और बदजुबानियों में आयत ला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, इसका भी परवाह नहीं किया और दुनिया से मुझे बदतर समझ लिया है, दुनिया भर से मुझे बदतर समझ लिया और दूर दूर मुल्कों तक मेरी निस्बत ये फैला दिया कि ये शख्स दर हकीकत मुफसिद और ठग और दुकानदार और कज़्ज़ाब और मुफ्तरी और नहायत दर्जे का बद आदमी है। सो अगर ऐसे कलमात हक के तालबों पर असर न डालते, बद असर न डालते, तो मैं इन तोहमतों पर सब्र करता, मगर मैं देखता हूं कि मौलवी सनाउल्लाह इन्हीं तोहमतों के जरिए से मेरे सिलसिले को नाबूद करना चाहता है और इस इमारत को मुनद्दम करना चाहता है जो तूने मेरे आका मेरे भेजने वाले अपने हाथ से बनाई है। इसलिए मैं अब तेरे ही तकद्दुस और रहमत का दामन पकड़कर तेरी जनाब में मुल्तजी हूं कि मुझ में और सनाउल्लाह में सच्चा फैसला फरमा, और जो तेरी निगाह में हकीकत में मुफसिद और कज़्ज़ाब है, जो तेरी निगाह में मुफसिद और कज़्ज़ाब है हकीकत में, उसको सादक की जिंदगी में ही दुनिया से उठा ले या किसी नहायत सख्त आफत में जो मौत के बराबर हो मुब्तला कर दे। ऐ मेरे प्यारे मालिक तू ऐसा ही कर, आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना अफ्तह बैनना व बैना कौमना बिल हक़ व अंत खैरुल फातिहीन, आमीन। बिल आखिर तवज्जो रखिएगा, ये अल्फाज रिकॉर्ड कर लें सारे साथी मेरे। बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चे में छाप दें और जो चाहें इसके नीचे लिख दें। अब फैसला खुदा के हाथ में है। ये मिर्जा साहब ने फैसला खुदा के हाथ में देकर दुआ की, महज दुआ की अल्लाह से कि ये महज दुआ के तौर पर मैंने अल्लाह से फैसला चाहा है, अल्लाह के यहाँ दुआ की है कि या अल्लाह फैसला कर दे मेरा और सनाउल्लाह अमृतसरी का। अब फैसला आया है 26 मई 1908 को। वो फैसला देखकर अपनी आंखों से आप लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं कबूल किया? जबकि मिर्जा साहब ने खुद अपने अल्लाह ताला से ये दुआ झुक झुक के रो के ऐसे ही की है। इसकी एक मिसाल और है पीछे। अबू जहल ने जब बदर के मैदान के लिए निकलने का इरादा किया तो खाना काबा की चौखट पकड़कर अबू जहल ने कहा था, या अल्लाह अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज झूठे हैं तो आज हमारे हाथों इनको कत्ल करवा दे। या अल्लाह तेरी दामन का तेरे घर का दरवाजा पकड़कर तेरी जनाब में मुल्तजी हैं, या अल्लाह आज फैसला कर दे। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने ये रिश्तों में दरारें डलवा दी हैं, आज इनको हमारे हाथों कत्ल करवा दे। लेकिन अगर हम झूठे हैं, या अल्लाह अगर अबू जहल झूठा है, आज ही बदर के दिन इनके हाथों मुझे कत्ल करवा दे। और कुरान ने कहा सूरह अनफाल ने, इन तस्तफ्तिहू फकद जाअकुमुल फत्ह, तुम इस्तफ्ता कर रहे थे, ये रहा फतवा, ये हमारा आ गया फतवा, ये लो जवाब। उसी दिन अबू जहल कत्ल हो गया। ऐसे ही बिल्कुल मिर्जा साहब ने 15 अप्रैल 1907 को दुआ की, 26 मई 1908 का दुआ का फैसला आया, आपने इसको कबूल नहीं किया। मिर्जा साहब ये मुबाहिला नहीं कर रहे थे, ये मुबाहिले की तहरीर नहीं थी, ना इसमें, मैंने आपको सारा इश्तिहार पढ़ के सुना दिया, ना इसमें कोई लफ्ज मुबाहिला है, ना इसके बाद कोई लफ्ज मुबाहिला मिर्जा साहब ने बोला। 13 महीने जिंदा रहे। अगर कभी मिर्जा साहब ने इसको मुबाहिला करार दिया है, वो तहरीर पेश कर दें, अभी ये मुनाजरा खत्म कर देते, आप जीते मैं हारा। अगर मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी इसको मुबाहिला नहीं कहा तो राजा साहब आप कौन है इसको मुबाहिला कहने वाले? और पहली बात तो यह है कि मिर्जा साहब तो मुबाहिले का चैलेंज दे ही नहीं सकते। हुकूमत के साथ मुआहदा करके आए हैं, दस्तखत करके आए हैं, इजाज़े अहमदी की तहरीर मैंने पढ़ के आपको सुना दी है। तो ये बिल्कुल गलत बयानी है कि वो कोई मुबाहिले की तहरीर थी। ये दुआ थी और कबूल भी हुई है। जब कबूल हुई है आपने इसको मानने से इनकार कर दिया। जी राजा साहब। जी जज़ाकल्लाह जी।